हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। सो वंस अगेन आप तमाम लोगों का टनाटन फिजिक्स में स्वागत है। मैं फिजिक्स टीचर राजीव राज सिंह। तो चलिए आज हम कुछ अलग बात करने वाले हैं। आज हम कंडक्टर्स की बात करें। यस यस, सही सुना आपने मेरे दोस्त। आज हम बात करेंगे कंडक्टर्स का। करेक्ट, ओके। सो अभी फिलहाल का मौसम ये है कि ऊपर में बारिश हो रही है, टनाटन धनाधन। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज कंडक्टर। तो चलिए कंडक्टर की बात आप तमाम लोग सभी लोग जानते हैं कि कंडक्टर क्या होता है। जैसे क्लास 10 या उससे पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि कंडक्टर वो होता है जो करेंट को अलाउ करता है, मतलब करेंट फ्लो करने देता है, वो कंडक्टर्स कहलाता है। राइट, यस। सेम डेफिनेशन अपन यहाँ भी यूज कर रहे हैं। कंडक्टर्स बेसिकली क्या है? दो सब्सटेंस विच अलाउ द करेंट इज कॉल्ड कंडक्टर। यहाँ देखिए एकदम क्लियर कट डेफिनेशन लिखा हुआ है कि दो सब्सटेंस which allow the current is called conductor. They have huge amount of free charges. अब रीजन है कि वो करंट को क्यों अलाउ करता है। so this is the reason they have huge amount of free charges. They have huge amount of free charges. Getting my points? Yes. so जैसे आप छोटे छोटे एग्जांपल दे सकते हो। सॉरी, लाइक एग्जांपल्स आप दे सकते हो सर। एग्जांपल्स में बहुत सारे कंडक्टर्स आप जानते हो, लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, राइट, एंड सिल्वर, लाइक दैट। So these are the conductors, right? Because they have huge amount of charges, so they will allow the current. Okay. Now we are going to discuss another topic. See here, whenever any charge is given to conductor, it always resides on its surface. You can see here, second point. Whenever any charge is given to conductor, it always resides on surface due to its mutual repulsion. See, due to, this is the important point, due to its mutual repulsion in such a way so that electric fields become zero. Because we know that inside the conductor net field should be zero. Because we know that inside the conductor net electric field should be zero. Right, suppose that this is a conductor and you have given some charge to this conductor. Suppose that you given this charge capital Q. Then what happen? This capital Q will divide in such a way, such a manner, so that they will net electric field becomes inside zero. They will divide in such a way like this. Suppose that like plus 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 plus, right, in such a way so that electric field inside the conductor is zero. Okay, one more thing we have to remember here, this is very important. Suppose that this is a one kind of conductor. Suppose that it means here it is a non-uniform in shape. What? Non-uniform. It is not uniform. It means radius of each and every point is not same. If you will give any charge to here, suppose that you give the Q here. So this Q will divide in such a manner. Again the same thing. This Q will divide in such a manner, right, so that net electric field will be zero. So this Q become like this. Suppose that like this.
So this q will be divided on this one like plus 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 plus, but this surface charge density will be different. So here surface charge density will be very large. Hold on. Here surface charge density will be very dense. So surface charge density inversely proportional to radius of curvature. See here, surface charge density inversely proportional to radius of curvature. You see in the figure you can see which one has a smallest radius. So this one has a smallest radius. So here charge density should be very high. Here charge density should be very high, and this one is a large cell radius of curvature. So here charge density should be very minimum. So whenever surface charge density is always maximum at minimum radius and minimum at maximum radius of curvature. So this point also you have to keep in your mind, my dear students. Okay, see. So this is a charge distribution on a conductor. Done buddy up to here. Is there any issue? I think there should not be any issue. This point is very important. You have to keep in your mind. Done. Okay, next see what happens. One just wait. Okay, see the next one. Charging and the charge induction on a metal body. I have taught this one already, but once again I am going to taught you. Sorry, I'm going to teach you. See here, charging on a metal, charging induction on a metal body. See, suppose that this is a conductor, and here some charge is kept Q naught in the vicinity of this conductor, not very far away. If it will be very far away, then there will be no. Oh, sorry. हाँ, अगर ये काफी दूर होगा, से सर मीन्स तो माफ करना, अगर ये काफी दूर होगा तब इसका कोई इफेक्ट जो होगा वहां पे नहीं होगा, समझिएगा। अगर ये काफी दूर होगा यहाँ से तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ये जो है इसके विसिनिटी में है, यानी कि इसके करीब है, काफी करीब है, तो करेगा कि इसके पास तो ह्यूज चार्ज है। तो अभी से पहले जब ये नहीं था, मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ, समझिएगा। जब ये नहीं था तो ये क्या न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब है कि इसके पास प्लस चार्ज भी है और माइनस चार्ज भी है, इसके पास प्लस चार्ज भी है और माइनस चार्ज भी है। समझिएगा चीजों को, इसके पास प्लस चार्ज भी है और माइनस चार्ज भी है। ओके ग्रेट। अब ठीक है, अब जैसे आपने कोई चार्ज यहाँ पे लाके रख दिया, सपोज दैट क्यू नॉट रख दिया, अब मान लो क्यू नॉट प्लस है, तो होगा क्या, ये क्यू नॉट निगेटिव चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, जबकि पॉजिटिव चार्ज को दूसरे साइड रिपेल कर देगा। तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा शेप। तो ये कुछ इस तरीके का शेप बन जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा क्यू नॉट तो होगा ही। अब यहाँ पे जितने भी निगेटिव चार्ज है उस निगेटिव चार्ज का क्लाउड बढ़ जाएगा, यानी कि निगेटिव चार्ज इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा।
यानी कि क्लाउड बढ़ जाएगी, भीड़ बढ़ जाएगी किसकी, निगेटिव चार्ज की। उसके अपोजिट में किसकी भीड़ बढ़ेगी, पॉजिटिव चार्ज की भीड़ बढ़ जाएगी। यस, तो यहाँ पे देखिए दूसरे तरफ प्लस चार्ज की, ओके एक, और दूसरे तरफ प्लस चार्ज की भीड़ बढ़ जाएगी, क्लाउड बढ़ जाएगी। अब इसको एक सिंपल वे में हम क्या बोलते हैं कि इस तरफ निगेटिव चार्ज शिफ्ट हो गया और इस तरफ पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो गया। बट द ट्रूथ क्या है कि शिफ्ट नहीं हो रहा, वो एक एट्रैक्शन के कारण क्लाउड बढ़ रहा है, यानी कि सबके सब इधर एक झुकाव हो रहा है निगेटिव चार्ज का और इधर झुकाव हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज का। लेकिन अभी हम यूनिवर्सिटी लेवल पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि चलो ये इधर शिफ्ट हो गया। समझ रहे हो मेरी बात को, क्योंकि अभी हम चीज़ों को यूनिवर्सिटी लेवल पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि जो आपका चार्ज क्यू नॉट है ये तो है ही। अब यहाँ पे सिंपल मैं भी वही कहूँगा, मैंने तो समझा दिया आपको कि वो बेसिकली एक झुकाव होता है, शिफ्ट नहीं होता है। लेकिन अभी हम अपने लेवल पे यही कहेंगे कि इस तरफ निगेटिव चार्ज शिफ्ट हो गया और इस तरफ पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो गया। समझ गए मेरी बात को, तो ये कहानी है इसकी, चार्जिंग ऑन अ मेटल बॉडी ड्यू टू इंडक्शन। एक और देखते हैं दूसरा, ठीक है। अब इसको देखिए, ये क्या है, चार्जिंग इन मेटल कैविटी। ये हालांकि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, अगर आप देखोगे तो मैंने आपको पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पढ़ाया है राइट। तो पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस में मैंने ये बातें बड़े क्लियर कट पढ़ाया है कि अगर कोई मेटल बॉडी है, मान लो अगर कोई मेटल बॉडी सपोज दैट जैसे ये मान लो कोई मेटल बॉडी है, तो इसके अंदर अगर कैविटी है, सपोज दैट ये कैविटी है, ये जो है कैविटी है सपोज दैट। तो ये अगर कैविटी थोड़ा सा बड़ा साइज, बिगर साइज बना लो, ये मान लो कैविटी है। तो कैविटी का मतलब होता है कि होल, एक छेद वहां पे होगा और यहाँ पे मटेरियल तो है ही, आपको मालूम है कि यहाँ से लेके यहाँ तक मटेरियल प्रेजेंट है। क्लियर कहानी, यस। तो क्या होता है, छेद एक होल होता है। अब आप ये मान लो कि यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट, सपोज दैट यहाँ पे चार्ज है क्यू नॉट, यहाँ पे इसके सेंटर पे ये चार्ज क्यू नॉट। अब आपसे पूछा गया कि कैविटी पे कोई चार्ज है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, सेंटर पे चार्ज अगर क्यू नॉट है तो आपको तो मालूम है ना कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इस रीजन में, किस रीजन में, यहाँ से लेके यहाँ तक के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन जीरो होना चाहिए, क्योंकि वो मेटल है। तो ये क्या, अच्छा, और ये कंडक्टर भी है साथ ही साथ, इसके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज है। तो क्या करेगा, ये प्लस वाला जो होगा इसके माइनस वाला को अपने तरफ खींच लेगा और उतना ही चार्ज ऊपर वाले पे आ जाएगा साहब। उतना ही चार्ज कहाँ चला जाएगा, ऊपर वाले पे आ जाएगा। तो ये देखो कहानी रहा। अब ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पर एक क्लियर कट बताया है कि यहाँ से अगर पैटर्न ऑफ फील्ड लाइंस खींचना चाहते हो, अगर आप पैटर्न ऑफ फील्ड लाइंस खींचना चाहते हो तो बड़े क्लियर कर शब्दों में, साफ शब्दों में मैंने बताया है। बस इनर सरफेस पे चार्ज हो गया, देखो चार्ज ऑन इनर सरफेस कितना हो जाएगा, चार्ज ऑन इनर सरफेस, देखिएगा ध्यान से बने रहिए, चार्ज ऑन इनर सरफेस।
तो वो होता है माइनस क्यू नॉट, क्योंकि क्यू नॉट तो सेंटर पे है। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूं चार्ज ऑन आउटर सरफेस, आउटर सरफेस, तो वो हो जाएगा अगेन प्लस क्यू नॉट, राइट। अगर फिर से मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का पैटर्न क्या होगा, तो आप जवाब दोगे सर वही पैटर्न होगा जो आपने बताया है। बड़ा सिंपल पैटर्न है सर। ये कैविटी है, चार्ज क्यू नॉट है, तो यहाँ पे सर माइनस क्यू चार्ज डेवलप हो गया। यहाँ पे क्या डेवलप हो गया, माइनस क्यू चार्ज, सॉरी माइनस क्यू नॉट चार्ज डेवलप हो गया, और यहाँ पे प्लस क्यू नॉट डेवलप हो गया। क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा बड़े प्यार से सर, कि अगर प्लस क्यू डेवलप हो गया इस बीच में, तो मेटल है, यानी कि इस बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता। तो होगा क्या, अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस रेडियली चारों तरफ निकलेंगी, लाइक दिस, रेडियली चारों तरफ निकलेंगी। पॉजिटिव से निकली निगेटिव पे फिनिश हो गई, पॉजिटिव से निकला निगेटिव पे फिनिश हो गया। इस बीच में कोई फील्ड लाइंस नहीं होगा। फिर यहाँ पॉजिटिव से निकला, ठीक है, पॉजिटिव से अवे फ्रॉम, पॉजिटिव से अवे फ्रॉम, पॉजिटिव से अवे फ्रॉम, लाइक दिस। इस तरीके से वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का पैटर्न होगा। तो ये सब तो मैंने आपको पढ़ा रखा है। क्लियर कहानी? अब इसके आगे बढ़ते हैं, आगे का सिनेरियो क्या है। ठीक है, तो देखिए कनेक्शन ऑफ, हाँ मैं एक चीज ये बता देता हूँ कि मैं हो सकता है किसी बुक के टॉपिक्स को नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो सीक्वेंस है वो छोटे छोटे पॉइंट्स को कवर करना हो रहा है। तो हो सकता है कि मैं किसी बुक के बड़े टॉपिक्स को यहाँ पे 10 छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड करके आपको पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज आप ध्यान देखिएगा। हाँ ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि आप न्यूमेरिकल सोल्व कीजिए, न्यूमेरिकल 100% होगा। किसी बुक के सीक्वेंस से मैच करेगा या नहीं करेगा वो यार मुझे नहीं मालूम। ठीक है, चलिए आ जाइए। हम बात करते हैं कनेक्शन ऑफ मेटल बॉडी व्हेन it is inside another body. Okay, fine, no issue, very easy concept, try to understand. Suppose that this is a one metal body. Okay, this is a one metal body, right? Fine. And here this is another metal body, another metal body. सपोज दैट ये रेडियस जो है इसका a है, दिस इज द वन a, and this is the b. If you have given, मान लो कि हमने इसको कोई चार्ज दे दिया, क्या, क्यू नॉट। ठीक है, ये क्यू नॉट है, कोई दिक्कत नहीं, साफ चलेगा। अगर क्यू नॉट देने के बाद अगर हमने इसको कनेक्ट कर दिया यहां से, इसको हमने यहां से कनेक्ट कर दिया, तो मैंने आपको बताया है ना कि चार्ज जब किसी कंडक्टर को कनेक्ट करते हो तो हमेशा, एक मिनट, ठीक है, देखिए जब किसी चार्ज बॉडी को कनेक्ट करते हो किसी दूसरी बॉडी से, तो चार्ज हमेशा एक हायर बॉडी, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। और वो कब तक करता है, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। ठीक है, मैं ये मान लेता हूँ। चलो अब होगा क्या, कुछ देर बाद ये आप मान लो, इमेजिन करो, ध्यान दीजिएगा कि इस पे चार्ज हो गया, ये इनर हो गया, ये आउटर हो गया, ध्यान दीजिएगा बस समझने की बात है। इस पे चार्ज मैंने मान लिया Q1 डैश हो गया, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ चार्ज तो गया होगा, बिल्कुल जाएगा सर, ठीक है, ओके। और इसी पे, इस पे मैं मान लेता हूँ कि इस पे जो चार्ज हो गया वो Q हो गया। आपको यहाँ तो कोई एतराज तो नहीं है? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए सर। देखिएगा, बड़े प्यार से देखिएगा सर, समझने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पे चार्ज हो गया Q। अब अगर इसकी रेडियस तो a है ही और इसकी रेडियस b है,
लेकिन अभी मैं बोलूं, अभी बोल सकता हूं कि पोटेंशियल एट ए जो होगा वो पोटेंशियल एट बी होगा, क्योंकि मैंने यही तो बताया कि जब कभी भी किसी चार्ज बॉडी को कनेक्ट करते हो, एक बॉडी से चार्ज दूसरे बॉडी पे फ्लो करता है, और वो कब तक करता है, जब तक दोनों की पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाए। यानी कि दोनों का पोटेंशियल, यानी कि V पोटेंशियल एट ए इजकल टू पोटेंशियल एट बी। अब समझिए, यहाँ पे आपको पोटेंशियल निकालना है, तो मैंने बड़े प्यार से पोटेंशियल ऑन कंसेंट्रिक सेल्स पढ़ाया है, तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। पहले इस चार्ज के कारण, तो इस चार्ज के कारण हो जाएगा के क्यू डैश, के क्यू नॉट डैश बाई ए। चलिए, बाहर वाले चार्ज के कारण हो जाएगा के क्यू बाई बी। ठीक है, ग्रेट। और आउटर सरफेस पे अगर निकालोगे तो वो हो जाएगा, देखिएगा, पहले इनर वाले के कारण के क्यू नॉट डैश बाई बी। क्यों क्यों बी? क्योंकि वो यहाँ से आर डिस्टेंस आउटर है, प्लस के क्यू बाई बी, यही होगा, के क्यू बाई बी होगा। अब मेरे ख्याल से यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे। ओके, पक्का समझ में आ रही है आपको बातें? तो पोटेंशियल यहाँ से लेके वहां तक का सेम होना चाहिए। ठीक है, अब एक काम कर लो, इन दोनों को कैंसिल कर दो। ये दिख रहा है क्या? ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा मेरे ख्याल से। कोई एतराज नहीं होना चाहिए। चेक कर लो एक बार फटाफट। हाँ, के क्यू वाई बी, और यहाँ भी हो जाएगा के क्यू वाई बी, के क्यू नॉट वाई बी। अब यहाँ पे जो बचा वो बच गया, देखिए। अच्छा, यहाँ पे एक कंडीशन गलत हो गया, ये रेडियस ए और बी हो रहा है। ये देखिए, यहाँ पे अगर देखोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ देखो, ये के क्यू नॉट डैश बाई ए इज इक्वल टू के क्यू नॉट डैश बाई बी हो रहा है। ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बता रहा है कि ए इज इक्वल टू बी बता रहा है। इसका मतलब ये बता रहा है कि फाइनल जो आफ्टर कंडक्शन, फाइनल जो स्फीयर होगा वो एक ही हो जाएगा। इन द सेंस, एक ही कहने का मतलब है कि इस पे कोई चार्ज नहीं रहेगा, सारा का सारा चार्ज आउटर पे ट्रांसफर हो जाएगा। सो होल चार्ज, होल चार्ज मूव टू आउटर स्फीयर, मूव टू आउटर स्फीयर। समझ गए मेरी बात को? तो फाइनल जो सिचुएशन तैयार होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। लिसन, सुनते रहो, बनते रहो, बने रहो टर्न फिजिक्स में। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। मैं एक बार फिर से सीक्वेंस वाइज इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। यहाँ देखें, एक हमारे पास मेटल बॉडी था, इसके अंदर एक दूसरा मेटल बॉडी था, इसके अंदर एक दूसरा मेटल बॉडी था। जैसे यहाँ पे था, कुछ चार्ज रहा होगा प्लस क्यू मान लो, या जो भी रहा होगा वो मैंने मान लिया। ठीक है, ये चार्ज हो गया, इसको कनेक्ट किया। जब कनेक्ट करोगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। सॉरी सॉरी बाबा सॉरी। ठीक है, और ये तो है ही, लेकिन दुर्भाग्यवश इसका सारा चार्ज ऊपर आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। चार्ज क्यू नॉट। तो यहाँ तक मेरे दोस्त आई थिंक आप समझ गए होंगे कि क्या बातें चल रही हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, अगर कोई भी दिक्कत होगा सो यू आर मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, और मैं बताने के लिए शायद रेडी भी हूँ, डोंट वरी। अब हम बात करते हैं चार्ज इंडक्शन इन अ कॉन्सेंट्रिक मेटल सेल। ये काफ़ी आसान कंसेप्ट है और इसके बेसिस पे हमने बहुत बार पोटेंशियल जो मैंने पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन अ कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल, अगर आपको याद हो तो ये सब चीज़ें मैंने डिस्कस किया था कि कॉन्सेंट्रिक सेल्स क्या होता है और उस पर चार्ज इंडक्शन कैसे होगा, वो अपन देखते हैं। चलिए, छोटी सी बात है, समझिएगा। मान लिया जाए कि आपके पास एक छोटा सा सेल है,
ठीक है, इस सेल का रेडियस a, ओके। तो सेल है तो ठीक है, उसके पास कुछ तो थिकनेस होगा। अरे सेल है तो थिकनेस नेग्लिजिबल होता है। वो कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम मानते हैं कि इसका मतलब नेग्लिजिबल थिकनेस है, बट थिकनेस कुछ ना होता है, समझ रहे हो, कुछ ना कुछ थिकनेस क्या होता है, होता ही है। ठीक है, अब समझिएगा, एक सेल ये हो गया, मान लिया इसके इसकी थिकनेस हो गया। सिमिलरली एक आउटर सेल दूसरा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, एक मिनट चेंज करने दे, क्या हो रहा है, हो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, देखिए समझिए। तो मैं इधर ले लेता हूँ कि एक छोटा सा सेल ये रहा अपना, एक छोटा सा सेल रहा, एक मिनट इसका पेन, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा सेल और रहा अपने पास, ठीक है, समझिएगा। तो इस सेल की कुछ तो थिकनेस होगी, इस सेल की कुछ ना कुछ थिकनेस होगी। तो ये थिकनेस, हाँ वो नेग्लिजिबल होता है, सेल का कुछ तो थिकनेस होगा, वो अलग बात है, क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, नो डाउट। मैं आपके पॉइंट से बिल्कुल एग्री हूँ, बट ये इस नेग्लिजिबल को हम इग्नोर करते हैं, बट अभी हमें इसको कंसिडर करके ही समझाना बेहतर होगा, इसीलिए मैं कंसिडर कर रहा हूँ। इसलिए आप इस चीज को बुरा ना मानिएगा प्लीज। देखते जाइए, बने रहिए टनाटन फिजिक्स में। ठीक है, देखिए, तो ये कहानी है। ठीक है, अब समझिए। देखिए, अब सपोज दैट कि आपने इसको चार्ज क्यू नॉट दिया है, आपने इसको चार्ज क्यू नॉट दिया है, नो इशू। तो अब क्या होगा, ये क्यू नॉट क्या करेगा, यहां पे माइनस क्यू नॉट इंड्यूस कर देगा इनर सरफेस पे। इनर सरफेस पे क्या कर देगा, माइनस क्यू नॉट चार्ज को इंड्यूस कर देगा। ये देखिए, यहाँ पे माइनस क्यू नॉट चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और इस माइनस क्यू नॉट की वजह से आउटर पे प्लस क्यू नॉट चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि इनसाइड द मेटल, इनसाइड द मेटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन तो जीरो होता है। तो जो भी इसकी थिकनेस है, ध्यान दीजिएगा, जो भी इसके थिकनेस है, उस थिकनेस में, इस वाले थिकनेस में देख पा रहे हैं, इस वाले थिकनेस में फील्ड लाइंस तो जीरो होगा। तो फील्ड लाइंस कब जीरो होगा, क्योंकि यहां से फील्ड लाइंस निकल के यहाँ पे एंड हो और फिर यहां से निकल जाए। तो अगर मेरे से कोई पूछता है चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ आउटर सेल, देखिएगा, चार्ज ऑन inner surface of inner surface of outer cell। सो आउटर सेल के इनर सरफेस पे चार्ज हो जाएगा माइनस क्यू नॉट। दूसरा यहां देखेंगे, चार्ज ऑन चार्ज ऑन आउटर सरफेस ऑफ आउटर सेल, आउटर सरफेस ऑफ आउटर सेल, ध्यान दीजिएगा, आउटर सेल, तो ये हो जाएगा प्लस क्यू नॉट। क्या यहाँ पे सर अगर एक से ज्यादा सेल होगा, बिल्कुल यही कंडीशन वहां भी आपको लगाते चलना है। इसी में एक केस और आप डील कर सकते हैं, देखिए एक केस अपन यहाँ पे और हैंडल कर सकते हैं, क्या कि मान लिया जाए, पहले अपन स्पेस बढ़ा लेते हैं, कि यहाँ पे देखें, अगर मान लिया जाए एक छोटा सा स्फीयर कंसेंट्रिक सेल है आपके पास, इसके बाजू में दूसरा कंसेंट्रिक सेल है आपके पास, ठीक है। अगर इस पे चार्ज क्यू नॉट Q1 है और इस पे चार्ज Q2 है, इनिशियली कैसा,
इनिशियली, ये शुरू की बात है। तो अब क्या होगा, इसके कारण यहाँ पे -q1 डेवलप होगा और यहाँ पे +q1 हो जाएगा। तो आउटर सरफेस पे इस केस में इनर सरफेस ऑफ आउटर सेल, इनर सरफेस ध्यान दीजिएगा, इनर सरफेस ऑफ आउटर सेल ये हो जाएगा -q1 एंड outer surface of outer surface of outer cell, outer cell ये हो जाएगा q1 प्लस q2। तो ये सब चीजें छोटी छोटी बात से मैं अभी बता रहा हूँ कि ये पॉइंट्स काफी छोटे छोटे जरूर हो सकते हैं, बट इसकी इंपोर्टेंस छोटी नहीं है। न्यूमेरिकल जब आप सोल्व करोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगी इन सब चीज़ों को डील करने में। तो प्लीज़ इस चीज़ पे बहुत ही फोकस होकर देखिएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? चलिए, तो मैं अब न्यूमेरिकल सेक्शन स्टार्ट करता हूँ। मैं कुछ न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ ताकि इस न्यूमेरिकल्स को देखने के बाद आपको न्यूमेरिकल जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको कुछ हेल्प मिल सकेंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो न्यूमेरिकल पढ़ते हैं अपन। A figure shows a spherical cell, okay, a spherical cell with inner radius r1, okay, and outer radius r2. Find no issue. A point charge q is placed at the distance x from center of a sphere as shown. तो फाइंड पोटेंशियल एट सी। ओके, तो इसका ये जब मैंने लिखा था, इस क्वेश्चन को टाइप किया था, तो इसका फिगर मैंने नहीं बनाया था, सोचा था कि फिगर जो है उसी वक्त बना लूंगा जब आपको प्रॉब्लम कराऊंगा तो मैं इसका फिगर बना लूंगा। तो एक बार इसका फिगर में देख लेता हूँ कि क्या फिगर है इसका, क्योंकि यहाँ पे x और c अपने को समझनी बड़ी बात है। ठीक है, तो फिगर ये है, देखिएगा। अब यहाँ पे दो कंसेंट्रिक सेल हो गया, एक का रेडियस r1 है, दूसरा का रेडियस r2 है। तो फिगर पे बना लेता हूँ। मान लिया जाए r1 रेडियस का स्फीयर है और ये वाला जो है, ये जो है वो r2 रेडियस का है, ध्यान दीजिएगा। तो इसकी रेडियस कितनी है, ये है r1। ठीक है, नो इसमें मैंने मान लिया ये रेडियस r1 है और ये रेडियस r2। अब क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा। अब बोला है कि यहां से x डिस्टेंस पे, और वो x कहीं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, वो x r1 से छोटा है। सो x है, दिस इज द लेस देन r1, और यहाँ पे ये x है और यहाँ पे कोई चार्ज, कौन सा पॉइंट चार्ज है, q, एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे q है। तो आपसे क्या बोला है कि फाइंड पोटेंशियल एट सेंटर। तो सेंटर पे आपसे बोला गया है कि पोटेंशियल फाइंड कीजिए। तो बड़ा आसान है ना, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कैसे? बिल्कुल। अब होगा क्या, समझिएगा। अब यहाँ पे आपको मालूम है कि ये प्लस चार्ज है, तो क्या करेगा, इस सेल पे नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा, फिर यहाँ प्लस हो जाएगा। मैं इसको एक बार चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आपको अभी यही तो पढ़ाया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंसेंट्रिक सेल, उसके बेसिस पे इसको अपन डील करते हैं। ठीक है, तो देखिए एक मिनट, थोड़ा स्पेस में बढ़ा लेता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन कुछ ऐसा रहा, ये एक छोटा सा मेटालिक स्फीयर, ओके, और इसके बाहर में एक बड़ा सा मेटालिक स्फीयर, ओके, और यहाँ पे एक चार्ज रहा हमारे पास, यहाँ पे रहा हमारे पास चार्ज क्यू नॉट, या आई थिंक क्यू है, तो क्यू ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ना लो आप यार। छोटी छोटी बातें बड़े बड़े शहर में होती रहती है, समझ रहे हो। ये चार्ज क्यू है, तो होगा क्या, ये क्यू क्या करेगा, यहाँ पे -q डेवलप कर देगा और यहाँ पे -q डेवलप कर देगा। ठीक है, -q, समझ रहे हैं मेरी बात को। और इसके आउटर पे +q डेवलप होगा, ये तो तुम्हें मालूम ही है। ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, अरे अरे बहुत अच्छी बात है। अब इस +q के कारण यहाँ पे -q डेवलप होगा, बिल्कुल, ये उससे भी अच्छी बात है। अगर ये -q डेवलप हो गया, अब देखिए, तो इसकी वजह से यहाँ पे +q डेवलप हो जाएगा,
अरे लल्ला, तुम तो समझ गए, बड़े समझदार निकले जी। आपकी समझदारी का जोर नहीं है। आपकी क्या बात है आलम, जनाब ही तो हो। अब चलिए पॉइंट सी, सेंटर पे आपको निकालना है। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट सी, सबसे पहले मैं इस पॉइंट चार्ज के कारण लिखूंगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे और करेक्शन कर देता हूँ, इस क्यू को मैं थोड़ा सा सेंटर से दूर लिख देता हूँ, यहाँ कहीं लिख देता हूँ। ये सेंटर है मान लो, तो यहाँ पे कहीं क्यू नॉट है, क्यू है मतलब क्यू नॉट नहीं है, दिख पा रही है आपको, ये क्यू है। और इसकी डिस्टेंस आपको बड़े प्यार से दिया होगा कि ये एक्स है, कितना है, ये एक्स है। तो पहले पॉइंट चार्ज का कितना होगा, तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज ये हो गया के क्यू बाई एक्स। चलिए इनर सरफेस के कारण क्या होगा बताइए जल्दी। तो आप बताओगे सर इनर सरफेस के कारण क्या होगा, जल्दी बताओ, मुझे भी सुनना है। तो इनर पे तो माइनस क्यू है, तो इनर के कारण माइनस क्यू क्यू बाई आर वन होगा। अरे इनर के कारण तो वही होगा ना, माइनस के क्यू बाई आर वन। और आउटर के कारण क्या होगा जल्दी बताओ। आउटर के कारण भी प्लस के क्यू बाई आर वन होगा। अच्छा जी, फिर इनर के कारण, आउटर सेल के इनर के कारण क्या होगा, तो आउटर सेल का जो इनर होगा उसके कारण आप पता कर लो फटाफट क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, बताओ जल्दी। एक मिनट होल्ड करो, थोड़ा सी टेक्निकल इशू आ रही है, ये जो है क्या बोलते हैं पेंटर काम करना बंद कर दिया। एक मिनट होल्ड कर लो। मैं हेलो 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 एवरीवन, यस यस कमन। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में भी इशू आ गया है, मैं वो इसे देख कर भी रहा था कि क्वेश्चंस में क्या इशू है। तो क्वेश्चंस को बेसिकली इशू ये है, देखिए मैं समझा देता हूँ। अरे कहाँ चला गया मैं, क्वेश्चंस में यहाँ पे देखोगे तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने स्फेरिकल सेल लिखा है, कॉन्सेंट्रिक सेल्स नहीं लिखा है। जबकि मैंने मान लिया इसको कंसेंट्रिक सेल, इसलिए ये जो भी फिनोमेना अभी तक हुआ है वो सब के सब बाय मिस्टेक रॉन्ग होगा, क्योंकि इसके लैंग्वेज पे मैंने ध्यान नहीं दिया और डायग्राम था नहीं, इसलिए मैं इस चीज़ को समझ नहीं पाया। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि इसकी टाइपिंग में कुछ दिन पहले करके चला गया था कक्षा होने से पहले, तो वही टाइप्ड है, तो इसलिए अभी हमें याद नहीं था कि यहाँ पे सेल है या कंसेंट्रिक सेल है। ठीक है, तो चलिए अभी समझा देता हूँ मैं, डोंट वरी। यहाँ पे स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल है तो यहाँ पे जो दिया है उसके रेडियस दिए हैं, मतलब ऐसा है कि आप मान लो ना, आप डिस्क मान लो और मेंदुवरा रखा हो, मेंदुवरा। हाँ, अगर आप मेंदुवरा खाते हो तो क्या ऐसा ही तो होता है कि एक डिस्क होता है। देखिए अगर आप मेंदुवरा खाए होंगे तो आपको क्लियर कट मालूम होगा कि ऐसा होता है कि एक डिस्क होता है लाइक दैट, और उस डिस्क में एक छोटा सा होल होता है जिसको आप हिंदी की भाषा में छिद्र बोलते हैं, मतलब छेद। यानी कि ये कैविटी है, लेकिन यहाँ पे मेटल प्रेजेंट है, यहाँ पे जो देख पा रहे हैं यहाँ पे मेटल प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक मेंदू बड़ा होता है। आपको अगर मेंदू बड़ा आपने खाया होगा तो ऐसा ही होता है, राइट। अब बोला है कि यहाँ सेंटर है और यहाँ से x डिस्टेंस पे समझिएगा कोई चार्ज है q, x डिस्टेंस पे कोई चार्ज q है, तो होगा क्या, वही मैं समझा रहा हूँ कि इस चार्ज q के कारण, यहाँ भी इरेज कर दो रे लल्ला, इरेज कर दो, इरेज कर दो। अब उस चार्ज q के कारण देखिए फिर से मैं समझा देता हूँ, ये एक छोटा सा स्फेरिकल सेल, ये इसका आउटर पार्ट है। डायग्राम पे मत जाइएगा, डायग्राम थोड़ा सा चेंज हो रहा है इधर उधर, डोंट वरी, राइट। तो यहाँ पे तो मेटल भरा हुआ है, यहाँ पे मेटल भरा पड़ा है। यहाँ के सेंटर से x डिस्टेंस पे कोई चार्ज है q, तो ये q क्या करेगा, यहाँ पे माइनस q डेवलप कर देगा। क्या कर देगा ये, यहाँ पे माइनस q डेवलप कर देगा, और उतना ही प्लस q यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। इस चीज को समझिएगा। हाँ, अगर ये कंसेंट्रिक होता तो जैसा मैंने पहले किया है
एग्जैक्ट उसी तरह हम अभी भी कर सकते हैं। क्लियर कहानी? तो देखिए अब इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा ड्यू टू प्लस चार्ज पॉइंट चार्ज ड्यू टू माइनस क्यू प्लस क्यू, राइट। तो देखिए पॉइंट चार्ज के कारण हो जाएगा के क्यू आई एक्स, ओके। इनर सरफेस के कारण हो जाएगा माइनस के क्यू आई आर वन, और आउटर सरफेस के कारण हो जाएगा के क्यू आई आर टू। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर जो काफी आसान था। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें आइए क्या ये भी फिगर वाली बात देखते हैं। क्या है? फिगर शोज अ कंडक्टिंग सेल ऑफ इनर रेडियस r1 एंड आउटर, ओके, कंडक्टिंग सेल of inner radius r1 and outer radius r2, okay. The cell is given point charge q and a point charge small q is placed at a distance r from the center of cell. So find the potential at point p, okay. Find the potential at point p on a on cell which is located at a distance x from, okay, from as shown। तो डायग्राम फिर से हमें एक बार यहाँ पे देखना होगा। तो चलिए मैं एक बार पहले आपको डायग्राम बना देता हूँ, तो फिर मैं आपसे आगे बात करता हूँ। ठीक है, डायग्राम ये है, देख पाएंगे आप तो देख लीजिए फटाफट फटाफट। कि यहाँ पे एक कंसेंट्रिक सेल, मतलब कंसेंट्रिक सेल है ये, एक छोटा सा सेल, ठीक है। इसके बाजू में एक बड़ा सा, और ये कंसेंट्रिक सेल्स नहीं है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। मतलब इस बीच में मटेरियल भरा पड़ा है, ठीक है। इस बीच में ये रेडियस आपको दिया हुआ है कितना, बताइए जल्दी बताइए। r1 दिया हुआ है, ठीक है, ये रेडियस r1 है, ओके। और ये रेडियस r2 है। अब यहाँ से r डिस्टेंस पे, यहाँ से r डिस्टेंस पे, ठीक है, एक चार्ज है पॉइंट चार्ज q, ये शायद दिया हुआ क्वेश्चन में, यहाँ देख लेते हैं कि सेल गिवन चार्ज, अच्छा सेल को चार्ज हमने q दिया है, ठीक है। तो सेल को हमने चार्ज q दे दिया, ठीक है, प्लस q। तो सेल को चार्ज हमने दिया प्लस q, ओके, नो इशू। उसके बाद क्या बोला है कि यहाँ से r डिस्टेंस पे पॉइंट चार्ज है q, और ये डिस्टेंस आउटसाइड है क्योंकि r दिया है ग्रेटर देन x, जो r है वो ग्रेटर देन r2 है, r दिया हुआ ग्रेटर देन r2, ओके, नो इशू, ठीक है। अब बोला कि फाइंड द पोटेंशियल एट अ पॉइंट विच इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम, ओके। इस पॉइंट चार्ज से x डिस्टेंस पे, मान लो यहाँ पे कहीं, ठीक है, ये इस पॉइंट चार्ज से x डिस्टेंस पे यहाँ पे कहीं, समझ रहे हो, x डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, आपको वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो कैसे करोगे बताओ? तो देखो जल्दी बताओ फटाफट, बता पाओगे या नहीं, बताइए। तो देखो बेसिकली जो सेल होता है वो इक्वी पोटेंशियल होता है, मैंने बताया है। तो जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा, समझ रहे हो, जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा वही पोटेंशियल कहाँ होगा, जल्दी बताओ। अच्छा यहाँ पे आपसे पूछा फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज ऑन सेल, ओके। चार्ज पोटेंशियल भी फाइंड करना है, किसके कारण, चार्ज ऑन सेल के कारण आपको फाइंड करना है। इस चीज को ध्यान रखें आप कि पोटेंशियल किसी और के कारण है, आपको सेल के कारण फाइंड करना है। तो पहले एक काम कर लेते हैं, वी नो डैट सॉल्यूशन पे अगर आते हैं तो हमें मालूम है कि ये सरफेस कैसा होता है, इक्वी पोटेंशियल होता है। तो अगर फिर से मैं एक बार डायग्राम बना लेता हूँ, वेट करो। अरे क्या लोचा लग गया। देखिए फिर से अगर मैं इसका एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, जो कि सिर्फ समझने के लिए, एक छोटा सा है, ये बाहर का सेल हो गया, इस पे चार्ज मान लो प्लस क्यू है, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ से x डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे पॉइंट q है, और ये एक पॉइंट है जहाँ पे आपको पॉइंट p, और ये सेंटर c मान लो। तो बेसिकली ये इक्वी पोटेंशियल होता है।
तो मैं बड़े प्यार से लिख सकता हूँ कि पोटेंशियल एट P जो होगा पोटेंशियल एट C होगा। अब देखिएगा, तो अब C पे पोटेंशियल किसके किसके कारण होगा, तो देखो मान लो ये वाला चार्ज नहीं है, तो इसके कारण जो पोटेंशियल होगा वो तो आपको मालूम है, ये हो जाएगा के क्यू बाई आर टू, यानी के कैपिटल बाई क्यू बाई आर टू। अब मान लो ये पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के कारण क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ कि पॉइंट पी पे पोटेंशियल निकालना है, तो पॉइंट पी पे पोटेंशियल में मान लेता हूँ पोटेंशियल ड्यू टू प्लस कैपिटल क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल कैपिटल क्यू, ये हो गया के क्यू बाई आर टू। ध्यान दो, के क्यू बाई आर टू प्लस के क्यू बाई आर, तो V प्लस क्यू इज इक्वल टू, अब इसके कारण कितना होगा, तो ये तो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के कारण के क्यू बाई आर होता है, तो ये हो जाएगा के क्यू बाई एक्स, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस आपको दिया गया है कि ये x है, दिस डिस्टेंस इज गिवन टू यू x, तो ये हो जाएगा के क्यू बाई आर टू प्लस के क्यू बाई आर, ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए तो यहाँ पे आते हैं, देखिएगा टनाटन बन रही फिजिक्स में आप। ठीक है, अब ये आपको निकालना है तो आप निकाल लो साहब, किसने आपको मना किया है? तो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू हो जाएगा, यहाँ देखिए के क्यू बाई आर टू प्लस के क्यू कॉमन 1/r माइनस 1/x, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट, और भी 5-7 क्वेश्चन बचे हुए उसको सोल्व कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, आप लोग बने रहिए टनाटन फिजिक्स में। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए क्या है, फिगर शोज टू कॉन्सेंट्रिक, हाँ यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सेल की बात आ गई, देख लेना राइट। फिगर शोज टू कॉन्सेंट्रिक cells of radii A and B with a charge Q is given to the outer cell, okay, with a charge given to the outer cell. Inner cell is connected to earth via switch S. Find the charge on inner cell after closing the switch. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका एक रफ डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको 25 ग्राम आइडिया आ जाए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रही है। देखिए यहाँ पे 2 कंसेंट्रिक सेल है, ओके नो इशू है तो है, चले स्पेस और ज्यादा ले लेते हैं अपने लिए। ठीक है तो ये हमारे पास एक सेल हो गया और ये हमारे पास दूसरा सेल हो गया, ये हो गया इनर सेल, वो हो गया आउटर सेल। चलो इसका रेडियस आपको जो मानना है मान लो, R1 मान लिया, और इसका रेडियस मैंने इसको R2 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला है कि प्लस चार्ज Q इज गिवन टू द आउटर सेल, तो आउटर सेल को हमने चार्ज दे दिया प्लस Q, मान लो ये यहाँ पे हमने चार्ज दे दिया प्लस Q आउटर सेल को, तो यहाँ पे आउटर सेल को हमने चार्ज दे दिया प्लस Q। ठीक है, ओके फाइन। अब पूछा क्या है आपसे, इसको हमने कनेक्ट कर दिया किसके हेल्प से, स्विच के हेल्प से। देखिएगा स्विच के हेल्प से इसको मैंने अर्थ को कनेक्ट कर दिया, ये स्विच एस है। तो बोला है कि जब इस स्विच को अगर आप क्लोज करेंगे, इस स्विच को चलो मैंने क्लोज भी कर दिया, तो जब इस स्विच को क्लोज करेंगे सो फाइंड द चार्ज ऑन इनर सेल आफ्टर क्लोजिंग, इस पे चार्ज कितना होगा। तो देखिए आप बड़े होशियार जीनियस माइंडेड लोग हैं, इतना तो आपको मालूम है। ठीक है, अच्छा इनर सेल को या आउटर सेल को कर रहे हैं, इनर सेल को कर रहे हैं ना, तो इतना तो आपको मालूम है कि इस पे जो भी चार्ज है इसके कारण कुछ ना कुछ यहाँ पे पोटेंशियल होगा, और ये अर्थ कर दिया गया तो इसका नेट पोटेंशियल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो कैसे जीरो होगा, उसको जीरो करने के लिए अर्थ क्या करेगी, यहाँ देखिएगा अर्थ जो है कुछ चार्ज यहाँ से यहाँ इसको सप्लाई करेगी, तो मैं मान लेता हूँ कि वो चार्ज QA है, चार्ज फ्रॉम द अर्थ टू द इनर सरफेस इज QA। अब मैं लिखता हूँ टोटल पोटेंशियल,
तो यहाँ पोटेंशियल ड्यू टू आउटर सेल कितना होगा, तो देखिए आउटर सेल की बात करते हैं तो आउटर सेल के लिए अच्छा रेडियस ए एंड बी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि R1 हो जाएगा ए और R2 हो जाएगा बी। चलिए तो आपको मालूम है कि आउटर सेल के लिए समझिएगा, चीजों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे दोस्त, उस पॉइंट को पकड़िए। आउटर सेल के लिए ये पॉइंट कैसा है, इनर सेल है, इनर पॉइंट है, बिल्कुल अगर ये इनर पॉइंट है तो हमें मालूम है कि सेंटर से लेकर सरफेस तक पोटेंशियल सेम होता है, वो के क्यू वाई आर होता है, तो के कैपिटल क्यू वाई ए हो जाएगा प्लस। अब मैं इसके बारे में बात करता हूँ, इसके खुद के सरफेस पे तो ये भी उतना ही हो के क्यू वाई आर, बट आर की जगह पे R1 हो जाएगा, यानी कि ये R2 हो जाएगा, सॉरी, और ये हो जाएगा के क्यू ई बाई R1। अब R1 और R2 को, और ये अर्थ से कनेक्टेड है तो ये हो जाएगा 0। अब R1 और R2 को वहां से आप रख दीजिए, तो यह के क्यू बाई R2 यानी कि B प्लस के क्यू ई बाई ए इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए चार्ज फ्रॉम द अर्थ जो आएगा वो हो जाएगा माइनस ए बाई बी इंटू क्यू, दिस इज द चार्ज फ्लो फ्रॉम अर्थ टू द सरफेस। तो ये इनर सरफेस का चार्ज होगा। क्लियर कहानी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है जल्दी बता दो मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखते हैं क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, पहले स्पेस तैयार करते हैं। क्वेश्चन ये है कि न्यूट्रल मेटल स्फीयर, a neutral metal sphere of radius a is connected to earth via switch S. Okay. 2 point charge q and 2q are placed at a separation 4a and 3a from the center to find the charge which flow to the earth, for which flow to earth when S is closed. Okay, ये क्वेश्चन भी as it is exactly प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, ये क्वेश्चन भी as it is exactly प्रीवियस क्वेश्चन जैसा। जैसे ये मेटल स्फीयर, ये मेटल स्फीयर कैसा है भाई साहब, न्यूट्रल रेडियस ए इज कनेक्टेड टू अर्थ वाया स्विच, तो स्विच लगा दो फटाफट, ये एक स्विच है, मान लो ये एक स्विच है, ठीक है, और इसको हमने क्या किया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये स्विच एस हो गया। अब देखिएगा न्यूट्रल मेटल स्फीयर कनेक्टेड टू अर्थ, तो इसका पोटेंशियल ऑलरेडी 0 है, तो अभी अर्थ का कोई चार्ज नहीं आएगा। अब बड़े प्यार से देखिएगा, इसकी खुद की रेडियस ए है और यहाँ पे दो चार्ज है, एक चार्ज एट 3a 4a पे है और दूसरा चार्ज 3a पे है, यानी कि मान लो कि एक चार्ज यहाँ पे है q और एक चार्ज यहाँ पे है 2q, तो ये वाली डिस्टेंस यहाँ पे दी गई है क्लियर कट कि ये वाली जो डिस्टेंस है, सॉरी, ये डिस्टेंस कितना है 4a, ओके 4a है, और ये वाली जो डिस्टेंस है माय डियर स्टूडेंट वो 3a है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस स्विच को आप क्लोज कर दो, जब इस स्विच को आप क्लोज करोगे तो देखिए अब ये तो अर्थ से कनेक्टेड हो गया, जब ये अर्थ से कनेक्टेड हो गया तो इसका नेट पोटेंशियल 0 होना चाहिए, लेकिन आप सोचो ना इसके कारण कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, इसके कारण भी इसके सेंटर पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, तो क्या होगा, उस सभी पोटेंशियल को जीरो करने के लिए अर्थ से यहाँ पे कोई ना कोई चार्ज फ्लो करके आएगी। मैं मान लिया फिर से क्यू ई, अब हम लिखते हैं पोटेंशियल एट सी, देखेंगे आप बड़ा आसान क्वेश्चन है और कई बार जेईई मेन वाले पूछते हैं इस क्वेश्चन को, बड़े आसान क्वेश्चन है। पोटेंशियल एट सी अगर मैं लिखने जाऊं तो क्या लिखूंगा, पहले इसके कारण लिखूंगा, देखो क्या लिखूंगा, के क्यू ई वाई ए लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पॉइंट चार्ज के कारण लिखूंगा, क्या लिखूंगा, के क्यू वाई 4a लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस पॉइंट चार्ज के कारण लिखूंगा के क्यू 2q वाई 3a, और ये सब मिलके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो बस इसको अपने को सोल्व करना है, तो देखिए तो यहाँ से अगर मैं बढ़ता हूँ आगे तो देखिए आप, तो ये हो जाएगा के क्यू ई वाई ए, और ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस के क्यू वाई 4a
-2kq/3 है। तो ये k गेट कैंसिल, ये q गेट कैंसिल, k गेट कैंसिल, q कैंसिल तो होगा ही नहीं सकता, सॉरी सॉरी सॉरी, q कैंसिल क्यों हो, तो साइड कैंसिल करने वाला तो है ही नहीं, तो q वाला चीज़ को हटा दिया जाए, ये कैंसिल नहीं हो पाएगा, ये भी कैंसिल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो q तो है ही यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे a कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से q आ रहा है, देखिए q e आ रहा है, माइनस कॉमन ले लो, तो ये q/4 प्लस ये आ गया 2q/3। अब इसको सोल्व कर लो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो अर्थ से इतना चार्ज जो है उस सरफेस पे फ्लो करेगा, राइट। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे, मैं एक बार दो बार नहीं बोल रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि प्रोसेस यही है, कंडीशन वही है, जस्ट आपको अपने प्रिंसिपल पे, अपने कंसेप्ट पे फोकस करना है, क्योंकि कंसेप्ट इससे ज़्यादा टफ नहीं पूछेंगे वो, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन आता है, काफ़ी आसान आता है, अभी 2 की बात कर रहा हूँ, वो 3 दे देंगे, 4 दे देंगे, कोई मैटर नहीं करता सर, वो 50 दे दे, सबके लिए सेम कंडीशन अप्लाई करना है। अब आ जाइए, यहाँ पे आते हैं सर, फिगर शोज 2 concentric cells of radii r and 3r। ओके, 2 concentric cells हैं जिसमें एक के रेडियाई r है, दूसरे का, यहाँ देखेंगे concentric cells है, radii r and 3r है, outer cell carries a charge q and inner cell connected to earth, तो find the amount of charge flow to the earth। आसान क्वेश्चन कर लोगे। देखो, ये एक इनर सेल हो गया, ये एक आउटर सेल हो गया, तो ये बोला है कि आउटर सेल पे जो चार्ज है वो प्लस क्यू है, आउटर सेल पे जो चार्ज है वो क्या है, प्लस क्यू है। आउटर सेल पे जो चार्ज है वो है प्लस क्यू, और रेडियस आपको दिया है, इसका रेडियस है आर और इसका रेडियस है 3r। इसका रेडियस कितना है बताइए, इसका रेडियस है 3r। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, तो बोला कि इनर सरफेस इज कनेक्टेड टू अर्थ, यानी कि इसको हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को फिर से आप सोल्व कर लीजिएगा, मैं मान के चलता हूँ कि इस पे चार्ज क्यू हो गया, तो सिंपल पोटेंशियल एट सी हो जाएगा के क्यू ई बाई आर प्लस के क्यू ई बाई 3r इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सिंपल देख लीजिए, क्यू ई आ रहा है मेरे ख्याल से -q/3, हमारा आंसर आ रहा है। समझ रहे मेरी बात को, तो सिंपल ये वाला कहानी आपको करना है। ठीक है, अब ऊपर आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि ए बी एंड सी आर 3 concentric cells of radii a, 2a and 3a। cell A is the innermost and cell A is the outermost। okay, cell A is given charge q and C is earth, to find the potential of cell B। ये क्वेश्चन भी काफी आसान सा है, आप चाहो तो इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से, बड़े ईमानदारी से, झूम के, नाच के, गा के, डांस करके कर सकते हो। चलो फटाफट बात करते हैं। यहाँ देखो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये एक सेल है, कौन सा सेल, ए, उसके बाद एक और सेल है, कौन सा सेल, बी, उसके बाद एक और सेल है, कौन सा सेल, सी। ओके, तो सी की बारी आ गई। अब सी, ये है सेल सी, देखिएगा, करेक्ट। एक मिनट, इसको इरेज करके दूसरा ड्रॉ करता हूँ। तुझको चाहे हम इतना कि गम में ना रहे, फिक्र क्या होगा सनम, सनम भी ना रहे। चलिए, तो यहाँ आते हैं, एक आउटर सेल है हमारे पास, तो ये आउटर सेल है, ये हमारे पास आउटर सेल है, ठीक है। चलिए फटाफट टनाटन आते हैं। देखिए, तो इसकी रेडियस आपको दिया हुआ है a, इसका रेडियस आपको दिया हुआ है 2a, आई थिंक, यस करेक्ट।
और ये रेडियस आपको दिया हुआ है 3a। कितना दिया हुआ है ये दिया हुआ है 3a। अब समझिए किसको बोला है, इसने बोला है इनर सेल आउटर, जो ए है इनर मोस्ट सेल है, यानी कि ये वाला स्फीयर ए है, ठीक है, ये वाला स्फीयर बी है और ये वाला सी है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सेल ए इज गिवन चार्ज क्यू, यानी कि इस पे कोई ना कोई चार्ज तो है, इस पे कोई ना कोई चार्ज तो है, वो है प्लस क्यू। कितना है वो? प्लस क्यू, ठीक है। तो ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू, ठीक है। और ये आउटर मोस्ट है, और क्या बोला है? इनर सेल फाइंड द पोटेंशियल ऑफ बी एंड द आउटर से, ओके सेल सी इज अर्थ, ओके ये अर्थ है, इसको हमने अर्थ कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब समझिएगा, अब पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका पोटेंशियल कितना होगा। तो आपसे पूछा है कि पोटेंशियल एट बी कितना होगा, ये चीजें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान से बड़ा प्यार से आपको समझना है। क्या समझना? समझिए, ये क्या है? प्लस क्यू है, तो ये तय है कि यहाँ पे माइनस क्यू डेवलप करेगा, माइनस क्यू यहाँ पे डेवलप करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे, ओके। अब समझिएगा चीजों को। अब माइनस क्यू के वजह से इसके आउटर सरफेस पे क्या डेवलप होगा? प्लस क्यू डेवलप होगा। समझ लो मेरी बात को, यहाँ पे प्लस क्यू पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, ठीक है, ओके, वो भी सही, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो यहाँ पे कोई ना कोई पोटेंशियल चार्ज, देखो यहाँ पे ये अर्थ से कनेक्टेड है, तो अर्थ कोई ना कोई चार्ज देगा। मान लो इस पे चार्ज है क्यू ए, ठीक है, तो यहाँ पे फिर से ये माइनस क्यू डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा? यहाँ पे माइनस क्यू डेवलप होगा, और इस माइनस क्यू के वजह से उसके आउटर सेल पे प्लस क्यू डेवलप होगा, यानी कि ये हो जाएगा। अब पोटेंशियल एट सी आप अप्लाई करके जीरो कर दो, तो यहाँ से क्यू ई आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? क्यू ई आ जाएगा। तो देखिएगा, सो पोटेंशियल एट सी, सरफेस सी पे, तो इसके कारण हो जाएगा के क्यू वाई ए, ध्यान दीजिएगा, के क्यू वाई ए, इसके कारण हो जाएगा माइनस के क्यू वाई टू ए, फिर आउटर वाले इस रेड कलर वाले के कारण हो जाएगा प्लस के क्यू बाई टू ए, इसके कारण हो जाएगा माइनस के क्यू बाई थ्री ए, और उसके कारण हो जाएगा प्लस के क्यू ई प्लस क्यू बाई थ्री ए, और ये होना चाहिए किसके इक्वल? जीरो के इक्वल, क्योंकि वो अर्थ है। तो जब वो अर्थ है, देखिएगा यहाँ पे आप, तो यहाँ से हमारे पास पोटेंशियल हो जाएगा। आप इसको कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? यहाँ देखिए, ये बचेगा के क्यू वाई ए माइनस के क्यू वाई थ्री ए प्लस के क्यू ई वाई थ्री ए प्लस के क्यू वाई थ्री ए इज इक्वल टू जीरो। ये गेट कैंसिल, तो यहाँ से ये गेट कैंसिल, ए एंड ए गेट कैंसिल, तो क्यू ई जो होगा वो माइनस थ्री क्यू हो जाएगा, क्यू ई कितना हो जाएगा? माइनस थ्री हो जाएगा, सिंपल। अब क्या करना है आपको? पोटेंशियल एक्स सी निकालना है, तो आप निकाल लीजिए, बताओ भाई, वैसा कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो पोटेंशियल एट बी, सॉरी नॉट सी, तो पोटेंशियल एट बी अगर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? ड्यू टू पोटेंशियल ए, यही लिखूंगा। तो पोटेंशियल ए यानी के क्यू के तो कारण, तो फटाफट लिख ही लेते हैं ना, क्यों सोचना इतना? सोचने से कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो देखिए, आपको डायग्राम में दिख ही रहा होगा, इस वाले के कारण क्या हो जाएगा? ये आउटर सरफेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के क्यू बाई टू ए, के क्यू बाई टू ए, इसके खुद के इनर निगेटिव के कारण हो जाएगा माइनस के क्यू बाई टू ए, और इसके खुद के बी के खुद के आउटर के कारण हो जाएगा के क्यू बाई टू ए, फिर इसके निगेटिव के कारण हो जाएगा माइनस के क्यू बाई थ्री ए, प्लस उसके आउटर के कारण हो जाएगा के क्यू ई बाई थ्री ए प्लस के क्यू बाई थ्री ए।
तो ये गेट कैंसिल, ये गेट कैंसिल। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? तो यहाँ पे इसका आंसर आप लिख सकते हो, चाहो तो आपका आंसर आ चुका है। तो पोटेंशियल एट बी जो हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो पोटेंशियल एट बी हो जाएगा के क्यू बाई टू ए प्लस के बाई थ्री ए, और क्यू ई कितना आया, क्यू ई आया माइनस थ्री क्यू, तो ये गेट कैंसिल। तो ये हो गया के क्यू बाई टू ए माइनस के क्यू बाई, सॉरी थोड़ा सा चेंज कर दो फटाफट, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ देखिए ये हो गया माइनस के क्यू बाई ए, राइट, थ्री गेट कैंसिल। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो आंसर हो जाएगा माइनस के क्यू बाई टू ए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, उसका लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हम दूसरे एपिसोड ऑफ कंडक्टर स्टार्ट करेंगे, आज नहीं कल। फिगर shows three concentric cells of radii A, B and C. With middle cell is earth. Inner and outer cell are given charge Q and 2Q. But find the charge on inner and outer surface of outer cell. बड़ा आसान क्वेश्चन ये भी, देखिएगा मैं हर एक पॉइंट, हर एक एंगल को कवर करने की कोशिश जरूर कर रहा हूँ। फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आए तो आप मोस्ट वेलकम है डाउट पूछने के लिए। देखते पहले डायग्राम बनाते, कितने सेल हैं साहब, तो 3 सेल है। ठीक है, तो ये हो गया एक इनर सेल, ठीक है, ये हो गया हमारे पास आउटर सेल, और ये सॉरी ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया मिडल सेल हो गया, और उसके बाद वाला ये हो गया आउटर सेल। देखिएगा इसकी रेडियस ए है, ठीक है, नो इशू। इसकी रेडियस बी है, नो इशू। और इसकी रेडियस सी है, वो भी नो इशू। ठीक है, अब समझिए क्या बोल रहा है कि द चार्ज क्यू इनर एंड आउटर, इस पे चार्ज क्यू है और इस पे चार्ज टू क्यू है, और इसको हमने अर्थ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, समझिए। अब ये क्यू क्या करेगा, यहाँ माइनस क्यू डेवलप करेगा, इतना तो कर सकता है वो। ठीक है, अब इस माइनस क्यू डेवलप करने के बाद आप कहोगे सर यहाँ पे प्लस क्यू डेवलप होगा, मैं कह सकता हूँ प्लस क्यू डेवलप होगा, बट बेसिकली अर्थ भी कुछ ना कुछ चार्ज सप्लाई करेगा, क्योंकि अर्थ को पोटेंशियल जीरो करना है। तो आप मान लो कि अर्थ ने जो चार्ज दिया, टोटल चार्ज मिला के यहाँ पे क्यू ही है, इसके कारण प्लस क्यू तो आएगा ही आएगा, प्लस अर्थ का सप्लाई भी कुछ आएगा, तो मैं मान लेता हूँ टोटल चार्ज क्यू ई हो गया। अब इस क्यू ई के कारण यहाँ पे माइनस क्यू ई डेवलप हो जाएगा, क्या डेवलप हो जाएगा, माइनस क्यू ई, यहाँ पे आउटर सरफेस के इनर सेल, सॉरी आउटर सेल के इनर सरफेस पे, और यहाँ माइनस क्यू है तो यहाँ पे प्लस क्यू ई हो गया। अब हम बात कर लेते हैं भाई साहब, आगे बढ़ते हैं, इसकी पोटेंशियल को जीरो करके हर जगह की चार्ज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, क्वेश्चन में ही तो पूछा गया कि फाइंड द चार्ज ऑन इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ आउटर सेल, यानी कि यहाँ पे चार्ज आपको बताना है, ये वाला चार्ज, ओके, और ये वाला चार्ज, यानी कि आपको फाइनली क्यू ई निकालना है। ठीक है ना, तो काफ़ी आसान है। पोटेंशियल एट बी में क्या लिख सकता हूँ, जीरो लिख सकता हूँ, क्योंकि वो अर्थ है। अब पोटेंशियल एट बी लिख क्या सकता हूँ, देखो इसके कारण ये आउटर हो गया, तो इसके कारण के क्यू वाई बी हो जाएगा, ओके, प्लस उसके कारण यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के क्यू वाई बी, ये बात भी सही है, ठीक है। उसके बाद प्लस के क्यू ई बाई बी हो जाएगा, किसके कारण, इस वाले के कारण, ठीक है। अब इसके कारण क्या होगा, तो इसके कारण हो जाएगा माइनस के क्यू ई बाई सी हो जाएगा। अब आउटर के कारण क्या होगा, तो आउटर के कारण हो जाएगा प्लस के क्यू
E प्लस 2Q बाई C इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसके आगे अपन बढ़ते हैं तो देखिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो देखिए ये गेट कैंसिल, ये गेट कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है के क्यू ई बाई बी, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस के क्यू ई बाई सी प्लस के क्यू ई बाई सी प्लस 2KQ बाई सी इज इक्वल टू 0। अब ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ रहा है के क्यू ई बाई बी इज इक्वल टू माइनस 2KQ बाई सी आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, समझ में आ रहा है कहानी, बिल्कुल टनाटन बने रही है, फिजिक्स में सब समझ में आएगा आपको। तो यहाँ से क्यू ई आ गया, तो के गेट कैंसिल, देखिए के और के गेट कैंसिल, तो यहाँ से क्यू ई आ गया आपके पास माइनस 2QQ, राइट, बी बाई सी, ये हमारा आंसर हो गया क्यू ई, ये हमारा आंसर हो गया क्या, क्यू ई। अब हम बात करते हैं कि इनर सरफेस पे कितना है। तो इनर सरफेस पे अगर आप जाओगे तो अभी मैंने लिखा है इनर सरफेस पे तो इतना ही चार्ज है, इनर सरफेस ऑफ आउटर सेल, इनर सरफेस ऑफ आउटर सेल। तो ये तो क्लियर कट दिखाया मैंने आपको, देख लीजिए एक बार फिर से चल के। इनर सरफेस ऑफ आउटर सेल, तो आउटर सेल कौन है, ये आउटर सेल है, ये वाला, ये देख पा रहे हैं, ये है आउटर सेल, सीधा आउटर सेल, और ये उसका इनर सेल है, सरफेस है, और ये उसका आउटर सरफेस है। तो इनर सरफेस में कितना चार्ज है, ये क्यू है, तो यहाँ पे माइनस क्यू ई है। आ गया भाई इनर सरफेस पे जो चार्ज आ गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ देखिए इनर सरफेस पे जो चार्ज है आउटर सेल के इनर सरफेस पे, ये है माइनस क्यू ई, और क्यू ई की वैल्यू यहाँ से रख दो, तो ये हो जाएगा 2Q B बाई सी। सिमिलरली चार्ज ऑन आउटर सरफेस ऑफ आउटर सेल, सिमिलरली आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, दूसरा जो फाइंड करना है वो ये भी फाइंड करना है, तो वो लिख लेते हैं अपन। यहाँ देखिए, बने रहिए बने रहिए, लास्ट क्वेश्चन है सर, चार्ज ऑन आउटर सरफेस, आउटर सरफेस ऑफ आउटर सेल। तो ये तो आपको मालूम है कि वहाँ पे चार्ज हो गया 2Q प्लस क्यू ई। अब क्यू ई की वैल्यू वहाँ से आप रख दीजिए, तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। क्या है इसकी वैल्यू को जल्दी बताइए आप मुझे। ये हो गया 2Q और ये हो गया माइनस 2Q B बाई सी। तो 2Q कॉमन ले लो आप, 2Q कॉमन लेते हो तो हो जाएगा C माइनस B बाई सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर आपने कंसेप्ट ढंग से समझ रहे हैं तो आपसे हो जाएगा, इसमें नहीं होने की कोई सवाल ही नहीं होता सर। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस एपिसोड का देखते हैं, क्या है क्वेश्चन। अ पॉइंट चार्ज Q इज मूविंग विद ए स्पीड v। हाँ, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अ पॉइंट चार्ज Q इज मूविंग विद ए स्पीड v towards a fixed earth metal sphere of radius a as shown in the figure. To find the current through the emitter in charge is at a distance 3a, okay, from the center of earth. Okay, नो इसको समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट और उतना ही आसान क्वेश्चन। ये हमारे पास एक मेटल स्फीयर मैं मान लेता हूँ, और ये क्या बोला, फिक्स है, दिस इज अ फिक्स्ड मेटल स्फीयर, और ये क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। नोट्स मतलब ये मूव नहीं कर सकता, ठीक है। इसके सेंटर से आर डिस्टेंस यानी कि 3a पे, ठीक है। पहले एक बार देख लेते हैं आर क्या है। ये हो जाएगा 3a, ठीक है। मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस a, इसका रेडियस कितना है, a है, वो भी सही है, ठीक है। फाइंड द करंट थ्रू द एमीटर। अच्छा, यहाँ पे एक एमीटर हमने कनेक्ट कर दिया है, हमने क्या किया, एक एमीटर को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, मान लो। तो बोला कि इस एमीटर्स के कारण कितना, मतलब एमीटर से कितना करंट फ्लो करेगा, व्हेन, ओके, फाइंड द करंट
फिक्स टुवर्ड्स, अच्छा ये एक चार्ज है पॉइंट चार्ज क्यू, अच्छा ये एक पॉइंट चार्ज क्यू, पहले इसको देख लेते हैं। पॉइंट चार्ज क्यू और ये किससे मूव कर रहा है, ये v स्पीड से मूव कर रहा है, किससे, v स्पीड से, टुवर्ड्स अ फिक्स्ड अर्थ मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस a as shown in the figure. Find the current through the emitter when charge is at distance 3a, ये 3a पे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है साहब। चलिए तो आपको करंट फाइंड करना है, आई क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले अपन काम करते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल का फॉर्मूला अपन लिखते हैं। तो अगर इन दोनों के बीच का मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखूं तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखता हूं तो ये हो जाएगा के क्यू, अच्छा इस पे कोई चार्ज है क्या, पॉइंट चार्ज क्यू इज मूविंग विथ v, के कोई पॉइंट चार्ज यहाँ पे नहीं दिया, दिया है क्या, विथ स्पीड v, ओके x की बात, अच्छा मैं मान लेता हूँ, चलो ये डिस्टेंस में मान लेता हूँ, कहाँ तक गया है ये भी नहीं दिया है, ओके। एक क्वेश्चन ये अपन कर सकते हैं कि अपन ये मान ले कि अर्थ मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस ए, अपन ये मान ले कि ये यहाँ से मूव करके t इक्वल टू 0 पे ये यहाँ था और किसी टाइम में ये यहाँ पे आ गया, किसी टाइम में क्या हो गया, ये यहाँ पे आ गया q, और ये डिस्टेंस अब मैं x मान लेता हूँ, कितना मान लेता हूँ x। पहले एक काम करते हैं अपन यहाँ के, तो पहले अपन यहाँ पे पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख पाएंगे क्या, हाँ इसका पोटेंशियल तो अपन लिख सकते हैं, इसके कारण कितना हो जाएगा के क्यू वाई एक्स, सेंटर से, अगर सेंटर से मानना है तो आप इस डिस्टेंस को सेंटर से मान लीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ये मान लो एक्स है। तो पहले अपन पोटेंशियल एट सी लिखते हैं, पोटेंशियल एट सी लिखते हैं कि रैंडम टाइम पे, तो क्या हो जाएगा के क्यू वाई एक्स हो जाएगा, रैंडम टाइम पे अगर लिखोगे के क्यू वाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या बोला उसने, एमिटर एंड चार्ज एट अ डिस्टेंस 3a, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा यहाँ पे आपसे कुछ और बोला क्या, यहाँ पे व्हेन चार्ज डिस्टेंस मूव थ्रू द क्वेश्चंस 3a, अच्छा ये फिक्स्ड और अर्थ भी है, ओके यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन दिख पा रहा है क्या आपको, फिक्स्ड अर्थ मेटल यानी कि ये अर्थ से भी कनेक्टेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना होगा, फिर से मैं आपका ये बता देता हूँ कि बेसिकली हमने ये थोड़ा सा एक लाइन मिस्टेक किया था कि ये अर्थ से भी कनेक्टेड है। तो क्या होगा, अब अर्थ जब मान लो ये डिस्टेंस x पे है तो इसकी नेट पोटेंशियल तो जीरो होनी है, तो नेट पोटेंशियल जीरो होना होगा, तो अर्थ कुछ ना कुछ यहाँ पे चार्ज सप्लाई करेगा। मैंने मान लिया कि अर्थ जो चार्ज सप्लाई किया वो QE है, तो इसलिए पोटेंशियल ड्यू टू दिस क्यू ई हो जाएगा सेंटर पे, इसके कारण क्या के क्यू आई एक्स होगा, और इसके कारण कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस के क्यू ई वाई ए हो जाएगा। और बेसिकली ये पोटेंशियल जीरो होना चाहिए क्योंकि अर्थ है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ से देखें के क्यू वाई एक्स इज इक्वल टू माइनस के क्यू ई वाई ए, ये गेट कैंसिल, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो क्यू ई आपका आ जाएगा, क्यू ई कितना आ रहा है, क्यू ई आ रहा है माइनस ए बाई एक्स, ठीक है, इंटू क्यू आ रहा है। अब चार्ज का मतलब क्या होता है समझिए, चार्ज का मतलब सॉरी करंट का मतलब होता है रेट ऑफ चार्ज डी क्यू बाई डी, राइट डी टी, यानी कि इस वाले इक्वेशन को आप डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है, इस वाले इक्वेशन को आप डिफ्रेंशिएट कर दो, तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो ये हो जाएगा डी क्यू ई बाई डी टी, क्योंकि कंडक्टर पे चार्ज ये वेरी कर रहा है, इस चार्ज से हमें कोई मतलब नहीं, तो चार्ज पार्टिकल जो कंडक्टर से बाहर है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस ए क्यू कॉमन और इस जगह डी बाई डी टी इंटू वन बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो गया करेंट, ये क्या हो गया करेंट हो गया, ये हो गया माइनस ए क्यू, ओके। और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, आपको मालूम है माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब समझिए डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, तो सर वेलोसिटी होता है, तो यहाँ से हमारे पास करेंट का जो इक्वेशन आ रहा है,
करंट का इक्वेशन वो क्या आ रहा है, आई इज इक्वल टू, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस ए क्यू बाई एक्स स्क्वायर इनटू वेलोसिटी भी। अच्छा, आपको जब करंट बोला है फाइंड करने के लिए, उस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जब आपको बोला है करंट फाइंड करने के लिए उस समय ये भी दिया है डिस्टेंस 3a, एट अ डिस्टेंस 3a क्लियर कट लिखा हुआ है, यानी कि आपको जो करंट बताना है वो कब बताना है, एट एक्स इक्वल टू 3a पे बताना है। तो उस समय आई जो होगा वो हो जाएगा ए क्यू बाई 3a का होल स्क्वायर इंटू वी, ये हो जाएगा ए क्यू वी बाई 9a स्क्वायर, गेट कैंसिल, तो आंसर आ रहा है क्यू वी बाई 9a एम्पियर। तो ये आंसर आ रहा है। तो चलिए आज की सभा हम यही समाप्त करते हैं। टनाटन फिजिक्स की तरफ से मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। मैं आपसे मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आप अपना ध्यान रखें, जहाँ भी रहें मस्त रहे टनाटन में। जय हिंद, जय भारत सर। मिलते हैं, बिल्कुल अभी मिलते हैं, डोंट वरी।